السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمحہ جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شرٹ لیس اونگے منہ بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی پلکیں لرز گئی۔ سنیے، اٹھی، اماں جان بلا رہی ہیں۔ اس نے دوسری طرف دیکھ کر بالاش کو پکارا۔ 2-3 بار آواز دینے پر بھی اس کو اٹھتا نہ دیکھ کے اسے غصہ آ گیا۔ اٹھیں! اس نے بالاش کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ سیدھا ہوتا اسے کھینچتے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ اس کی حرکت پر آیت گھبرا کر اس کے کندھے کو سختی سے تھام چکی تھی۔ ملائم ہاتھ، معصوم چہرہ یا خوبصورت نین اور ہونٹ، قتل باقی ہے بس۔ اوزار تو سب پورے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے گمبھیر لہجے میں شاعری بولتا اسے لال کر گیا تھا۔ وہ خود کو چھڑا کر اٹھنے کی لگی۔ ابھی کہاں جانا؟ ابھی ہماری آنکھوں کی پیاس بجھی نہیں۔ وہ اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ پلیز چھوڑیں، اماں جان بلا رہی ہیں۔ شرم سے اس کا نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اماں جان کے پوتے پر دھیان دو۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر خود پر جھکاتے اس کے ہونٹوں پر لب رکھ گیا۔ آیت سختی سے آنکھیں میچ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، مگر ہائے تمہارے ہونٹ۔ وہ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا اسے دیکھ کر بے باکی سے بولا۔ اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کر کے آیت 120 کی سپیڈ سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی بلال شاہ بھی اٹھتا اپنے کمرے سے لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ امی، اس نے جھجک کر سجدہ بیگم کو پکارا۔ سجدہ بیگم نے مڑ کر اسے دیکھا جو گلابی کلر کے لون کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ سجدہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ میں آپ کے ساتھ ناشتہ بنانے آئی ہوں، عقیدت نے مسکرا کر کہا۔ بالکل نہیں، کچن کے لیے بھی اور بھابھی ہیں، ہم سب کر لیں گے۔ تم آرام کرو، یہ آرام کے دن ہیں، گھومو پھرو عرش کے ساتھ، باہر جاؤ، پھر بچوں کے بعد ویسے بھی گھومنے کا وقت نہیں ملے گا۔ سجدہ بیگم محبت سے کہہ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ مگر مجھے فری بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، وہ معصومیت سے بولی۔ عرش سے بول کر میں تمہارے لیے کتابیں منگواتی ہوں جس میں بچوں کی کیئر کیسے کرنی چاہیے، کیسے بچوں کو اٹھانا چاہیے، سب لکھا ہوتا ہے۔ بس وہ پڑھنا، وقت گزر جائے گا، باقی وقت تم گھومنے پھرنے میں گزار دو۔ سجدہ بیگم اسے سمجھا کر واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ وہاں بیٹھی رب کی بہت بار شکر گزار ہوئی تھی جنہوں نے اسے اتنی آزمائشوں کے بعد اس فیملی سے نوازا تھا جن کے ساتھ سکون ہی سکون تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ خود کو آدم خان زادہ کے حصار میں قید پایا۔ اس نے مدھی مدھی آنکھوں سے آدم کو دیکھا جو پرسکون سویا ہوا تھا۔ وہ ایک مکمل مردانہ وجاہت سے بھرپور مرد تھا۔ اس کی مونچھیں اور بیئرڈز سے اسے بہت پسند تھی۔ وہ شخص اسے اندھیرے سے روشنی میں لے آیا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ آدم بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ بات اسے بلندی پر پہنچا گیا تھا۔ کل کیسے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس کے تمام تکلیفوں کو وہ اپنی باہوں میں سمیٹ کر بھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے گزری رات پوری شدت سے یاد آئی تھی، اور جیسے جیسے اسے سب یاد آتا گیا اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بازو ہٹا کر نکلنے لگی مگر وہ نیند میں بھی اسے خود میں بھیج گیا۔ سو جاؤ، وہ سرگوشی میں بولتا اسے قریب کر گیا۔ صبح ہو گئی ہے۔ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ شش! آدم کی سزنش پر وہ خاموش ہو گئی، مگر شرم کے مارے وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی آدم کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جائے۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ مگر آدم اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ابھی بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ شفا تو سختی سے آنکھیں میچ کر لیٹی تھی۔ گزری رات اس کا ڈرنا شرمانا یاد کر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سمجھ گیا دروازے پر کون ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اٹھ کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھا۔ وہاں سے شفا کے کپڑے لے کر اس کے پاس آیا۔ اٹھیں، جا کر فریش ہو جائے۔ اس نے دھیرے سے شفا کو پکارا مگر اس نے تو جیسے آدم کے سامنے نظر نہ اٹھانے کی قسم کھائی تھی۔ شفا اٹھ جائے نا، ہم بہت لیٹ ہو گئے۔ اس نے شفا کے گال پر ہاتھ رکھ پھیرا۔ اچھا، آپ کے کپڑے یہاں رکھے ہیں، میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں، منت باہر کھڑی ہے، آپ جا کر فریش ہو جائیں۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر اس کی شرم سمجھتا اس کے کپڑے رکھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی آواز محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی
और अपने पास रखे कपड़े उठाती वॉशरूम में भाग गई। इसे वॉशरूम में बंद होते देख आदम ने दरवाजा खोलकर मन्नत को गोद में उठा लिया था, जिसे घूर कर देख रही थी। क्या हुआ मेरा बेटा, गुस्सा है आज अपने पापा से? आदम इसका गाल चूमता कमरे में ले आया। मामा तो बुलाओ। मम्मत मन्नत ने बाप को जवाब देने के बजाय माँ की तलाश में कमरे से में नजर दौड़ाई। पहले पापा से तो नाराजगी खत्म करो ना। आदम इसे अपने सीने पर लिटा गया। इसने नाराजगी से आदम को देखा। मेरी प्रिंसेस गुस्सा क्यों है? मैं आपसे बात नहीं तलूंगी। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मन्नत की नाराजगी बरकरार थी। आदम का कहकर पूरे कमरे में गूंजा था, इसकी छोटी फूली सी नाक देखकर। आकर अपनी बेटी को संभाले, मैं बाहर जा रहा हूँ। शिफा को वॉशरूम से ना निकलते देख वो ड्रेसिंग रूम में घुस गया। इसके जाते ही क्लिक की आवाज के साथ वो दरवाजा खोलकर बाहर आई थी। मन्नत इसको देखकर लिपट गई थी। शिफा ने भी इसके गाल चूम लिए थे। आदम खान साहब जो इससे बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, ब्लैक सूट पहने गीले बालों में निकले रूट में बाहर आता देखकर वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले। मुझे मुकम्मल करने का शुक्रिया जिंदगी। इसने पीछे से शिफा के बालों वाले सर पर हाथ लप रखे थे। शिफा इस अचानक इब्तदा पर घबरा गई। वो तो समझी थी वो कमरे से चला गया। शिफा का दिल बेख्तियार जोर से धड़का। इसकी बोझल सरगोशी पर इसने मुड़ने की कोशिश की, मगर आदम ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। इसकी सरगोशी इतनी धीमी थी, वो भी बमुश्किल सुन पाई थी। मदद इन सबसे बेखबर अभी तक शिफा के कमर में हाथ बांधे इसके पेट से लिपटी हुई थी। बाप बेटी के बीच अपनी सिचुएशन सोचकर इसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई थी, जिसे चाह कर भी वो जब्त नहीं कर पाई थी। आपकी मुस्कुराहट मेरे दिल में आपके लिए मौजूद मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा करती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब मैं अपना काम धंधा छोड़कर आपके पहलों में चिपक जाऊंगा। आदम की धीमी सरगोशी पर इसकी जान हल्कान हो रही थी। इसे कसमसाता देख मन्नत इससे अलग हो गई थी। पर मन्नत के अलग होते ही आदम झटके से इसे दूर हुआ था और वॉशरूम में घुस गया। इसके जाते ही शिफा ने एक गहरी सांस ली। वो मोहब्बत की बात कर रहा था, जबकि शिफा इसकी अच्छाई की वजह से इसकी इश्क कर बैठी थी। सब नाश्ते पर आदम और शिफा का इंतजार कर रहे थे। इन तीनों को एक साथ डाइनिंग हॉल में दाखिल होते देख फरमा बेगम ने नजर उतारी दी। आदम के चेहरे पर चमक ही निराली थी और शिफा का शर्माया रूप इन्हें बहुत कुछ समझा गया था। वो सबको सलाम करते अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए थे। मन्नत को फरमा बेगम अपने साथ बिठा चुकी थी। हर कोई मुकम्मल था, बस वहां एक जिजा ही थी जो उदासी से नाश्ता कर रही थी। सलार आज भी मौजूद नहीं था। फरमा बेगम माँ थी, कैसे बच्चों की खुशी और गम का समझ नहीं पाते। जिजा के लिए वो अक्सर परेशान रहती थी, मगर इनको लगता था वो सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से अपना नुकसान करती है। बेटा मैं चाह रही हूँ आप अर्श का वलीमा कर दिया जाए। अर्श की शादी का किसी को इल्म नहीं, माशाल्लाह से अब नया मेहमान आने वाला है, तो हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। मैंने और सजदा ने तो अगले संडे का सोचा है, आप लोग अब तो तुम लोग देख लो कौन सा दिन सही रहेगा। फरमा बेगम इन दोनों की तरफ देख कर बोली, ठीक है अम्मी, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। मेरे ख्याल से संडे का दिन बेहतर रहेगा। जो जो तैयारी करनी है वो हम कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। आदम ने इनको पुरसुकून किया और नीचे से शिफा का हाथ थाम लिया। मुझे पहले ही सबके सामने गर्दन नहीं उठा पा रही थी, इसकी हरकत पर गड़बड़ा गई। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? सजदा बेगम ने शिफा की परेशान सूरत देखकर पूछा। ना नहीं छोटी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबकी तवज्जो खुद की तरफ देखकर वो शर्मिंदा हो गई थी। आदम ने इसकी हरकत देखकर मुस्कुराहट टपाई। अर्श मेहमानों की लिस्ट तुम बना लेना और सालार से कहना आकर मुझसे ऑफिस में मिले। आदम नाश्ते से फारिग होकर उठ गया। अर्श ने इस्तबात में सर हिला दिया। अब तो गुस्सा छोड़ दो प्रिंसेस, अब तो मान जाओ। आदम जाने से पहले मन्नत को मनाने लगा। मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी, वह मुंह खुलाकर बोली। अच्छा ये तो बताओ, क्यों नाराज है मेरा बेटा? आदम ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर पूछा। आप मुझे रोज मामा के पास तू नहीं नहीं देने देते, वो तो दाने देते। आप मुझे रोज मामा के पास सोने नहीं देते, खुद सो जाते हैं। सबके सामने इसकी बात पर आदम जी भरकर शर्मिंदा हो गया था। आदम को अपने आप पर गुस्सा आया। इसे पता होता है इसकी बेटी इस बात पर नाराज है, तो वह इससे सबके सामने पूछता ही नहीं। शिफा से तो वहां बैठना मुहाल हो गया था। इसकी झुकी गर्दन मजीद झुक गई। सबने अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मन्नत जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, आखिर बेटे का
सुर्ख चेहरा देखकर फरवा बेगम को ये ख्याल आया। वो मन्नत के मुंह में निवाला डालकर उसका मुंह बंद कर दे। आदम सुर्ख चेहरे के साथ ही वहां से निकल गया। अर्श भी इसके पीछे ही निकला। बलाज बेटा, कुछ दिनों के लिए बहू को बाहर ले जाओ, घूम फिर लेगी, हनीमून हो जाएगा तुम लोगों का। इस वक्त वो लाउंज में ही बीजान से अपनी सर की मालिश करवा रहा था। आयत इसकी बेबाकी की वजह से हानिया के साथ ही बैठी थी। इसके इशारे पर वो कमरे में नहीं आई, तो वो मजबूरन भी बाहर आकर बैठ गया। आज इसने सिर्फ आयत के साथ वक्त गुजारने के लिए ऑफिस से छुट्टी की थी, मगर वो थी कि हाथ आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आंखों ही आंखों में से धमकी देकर अम्मा जान की तरफ पीठ करके आंखें बंद करके बैठ गया था, ताकि वह उसके सर की मालिश कर सके। सर, बाहर दो लेडीज आई हैं, आयत मैडम से मिलने। मुलाजिम ने आकर इन्हें इतला दी तो आयत जो बैठी हुई थी झटके से खड़ी हो गई। इनको जाकर मना कर दो, मैडम नहीं मिलना चाहती इनसे। बलाज ने अपनी ही धुन में मना कर दिया। इनको अंदर भेजो, मना करने की जरूरत नहीं है। अम्मा जान ने आयत की आंसू भरी आंखों को देखकर कहा, यार अम्मा जान, मैं नहीं चाहता कि इस खानदान से मेरी बीवी कोई ताल्लुक रखे। बलाज ने नाराजगी से कहा, प्लीज मुझे मिलने थे। आयत की भराई हुई आवाज पर इसने आयत को देखकर, जो इल्तिजा करती नजरों से उसे देख रही थी, और वो पल में इन समंदर जैसी गहरी आंखों में डूब गया था। इसे इस वक्त ये बात माननी पड़ी, वो इससे हर बात मनवाने का हुनर रखती है। जाओ इनको अंदर भेजो। वो जरा नाराजगी से कहकर उठकर सोफे पर बैठ चुका था। फरवा बेगम फरीहा के साथ आज शाम मेंशन आई थी। मुलाजमा के साथ जब वो अंदर दाखिल हुई तो सामने ही आयत बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। इनको देखते ही वो भाग कर फरवा बेगम के गले लगी थी। फरवा बेगम ने सगी माँ की तरह इसका माथा चूमा था। आखिर को सगी औलाद की तरह ख्याल रखा था। वो फरवा बेगम से अलग होकर फरीहा से मिली, मगर इसने फरीहा में वो गर्मजोशी महसूस नहीं की जो हमेशा हुआ करती थी। इसने एक नजर अपनी बहन को देखा जो नाराज नजरों से इसे देख रही थी। शर्मिंदगी से वो अपनी नजरें झुका गई। फरवा बेगम और फरीन ने आगे बढ़कर अम्मा जान को सलाम किया। हानिया से भी मिली, मगर वह मगरूर शहजादा ब्लैक ट्राउजर टी शर्ट में टांग पर टांग रखे लापरवाह अंदाज में बैठा मोबाइल यूज कर रहा था, जैसे इसके अलावा वहां कोई ना हो। इसकी हरकत पर आयत बेवजह ही सबके सामने शर्मिंदा हो गई। इतने लोगों के होते हुए भी वहां खामोशी सी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। हानिया अम्मा जान के इशारे पर किचन में चली गई थी। जब 5 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, बालाज अपना मोबाइल साइड पर रखता सीधा होकर बैठा था। जी कहिए, कैसे आना हुआ आप लोगों का? बालाज ने संजीदगी से फरी से पूछा, क्योंकि वो जितना भी बदतमीज था मगर बड़ों से साथ लहजे में बात करना वो बहुत मायूब समझता था। वो फरी तकरीबन इसके जितने या शायद एक आध साल बड़ी थी, ऐसा इसका मानना था। वो शक्ल से ही पहचान चुका था वो आयत की बहन है, क्योंकि वो खुद हूबहू आयत जैसी थी। फरी ने घूर कर इसे देखा, जिसे बड़े छोटे की तमीज नहीं थी। जाहिर सी बात है, इतने धोखे खाने के बाद यहाँ हम दावतें उड़ाने तो आए नहीं होंगे। अगर आए हैं तो किसी काम से ही आए होंगे। अगर आप अपनी मसरूफियत से थोड़ा वक्त निकाल लें तो कुछ का बात करना चाहेंगे। परी भी इसकी बात का जवाब में तंज करना नहीं भूली थी, जबकि धोखे का मतलब आयत और बालाद अच्छे से समझ गए थे। पर वह बेगम ने फरी के हाथ में हाथ रखकर इसे गुस्सा करने से रोका था। अम्मा जी, बच्चों से जो गलतियां हो गई हैं इसे हम सुधार नहीं सकते, मगर हम कोई बेहतर रास्ता निकाल कर इसे सही कर सकते हैं। अब आयत और बालाज ने अपनी मर्जी से जो भी फैसला किया वो इनकी जिंदगी है, लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ इन सब चीजों को अच्छा नहीं समझा जाता। अभी तो किसी को इस बारे में पता नहीं, लेकिन जैसे सबको पता चला खानदान वाले बातें बनाएंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस संडे अर्श के वलीमे के साथ आयत की रुखसती कर दी जाए, ताकि किसी को भी कुछ बोलने का मौका ना मिले। फरमा बेगम ने बोलकर अम्मा जान की तरफ देखा, जो इनकी बात से सहमत नजर आ रही थी, जबकि बालाज अभी तक वैसे ही अकड़ के बैठे थे। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मुझे मंजूर नहीं। बालाज ने इनकी बात काटी थी। सबने हैरानगी से इनकी तरफ देखा। मुझे मंजूर नहीं। बालाज ने अम्मा जान की बात काटी थी। सब ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा, जो बिना किसी लिहाज के ये मुंह कर चुका था, मना कर चुका था। तब तक खानिया भी मुलाजमा के साथ इनके लिए चाय और स्नैक्स वगैरह लेकर आ चुकी थी। इतना सीरियस माहौल देखकर वो भी परेशान हो चुकी थी। मुझे मंजूर नहीं है कि मेरी बीवी इस घर में दोबारा जाए। और रही बात लोगों की, मैं बातें बनाने वाले तो मेरी बीवी के बारे में गलत बोलने वालों की जुबान काटने की ताकत रखता हूँ, इसलिए आप लोग फिक्र मत कीजिए। मगर बेटा,
चले बड़ी अम्मी, फरवा बेगम ने कुछ बोलना चाहा मगर फरीद इनका हाथ थाम कर उठा चुकी थी। आपने मेरी बात सुने। आयत ने रोते हुए इसका बाजू पकड़ लिया। माशाल्लाह, बेहतरीन इंतखाब किया है तुमने अपने लिए। खुशी हुई, बहुत इज्जत मिली हमें आज यहाँ से। अल्लाह करे हमेशा खुश रहो। लेकिन अगर तुम अपनी पसंद के बारे में हमें पहले बता देती तो आज लोगों के सामने हमें जवाब दे नहीं होना पड़ता। पर ये अफसोस से इसका हाथ अपने बाजू से हटाती फरवा बेगम को थामे बाहर निकल गई थी। इनके निकलते ही आयत भी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। अजीब ड्रामेबाजी लगा रखी है यार। जो भी आता है मेरी बीवी को रुला कर चला जाता है, इसीलिए इन लोगों को अंदर लाने से मना कर रहा था। इस वक्त आयत के आंसू देखकर वो इंतहाई गुस्से में था। तुमने इनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अम्मा जान ने अफसोस से पोते को देखा। अब आप भी इनकी वजह से मुझे सुनाएंगी। वो गुस्से से बोलता कमरे की तरफ बढ़ गया। आयत, मैंने कहा खोलो दरवाजा। इसने 3-4 बार नॉक करने पर भी जब अंदर से आवाज नहीं आई तो इसने मुलाजिम से कमरे की डुप्लीकेट मंगवाई। इसकी रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी। इसने जब दरवाजा खोला तो वो बेड के कोने पर बैठे हिचकियों से रो रही थी। वो तड़प कर इस तक पहुंचा और उसे थाम कर सीधा किया। रोई रोई सूजी आंखें, भीगे होंठ, सुर्ख चेहरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ था। क्यों रो रही हो यार? बलाज इसके आंसू उंगली के पोरों से साफ करते बोला। आयत ने कोई जवाब नहीं दिया मगर आंसू तो इतर से बहकर इसका चेहरा भिगो रहे थे। बालाज ने पानी का गिलास भरकर मुंह से लगाया, वह घूंट पीकर पीछे कर गई। अच्छा चुप, रोना बंद करो। वो उसे सीने से लगाता किसी बच्चे की तरह पुचकारने लगा। आप बहुत बुरे हैं, हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। कभी मुझसे नहीं पूछते मैं क्या चाहती हूँ, हमेशा अपना फैसला थोपते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है, मगर आपने मुझे इंसान समझा ही नहीं। वो इसी के सीने से लगी रोते हुए से शिकायत कर रही थी। सलार को बहुत अफसोस हुआ, काश वो सलार की बहन ना होती तो शायद आज इसकी बीवी इस पर फख्र कर रही होती। जानम प्लीज रोना बंद करो। देखो हम कल ही धूमधाम से अपना वलीमा करेंगे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। इसकी बात पर आयत ने गुस्से से दूर धकेलना और उठकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? बालाज ने इसका हाथ थामा था। अम्मा जान के पास अब मैं वहीं रहूंगी, वो गुस्से से कहकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। मगर क्यों? वो परेशान सूरत लिए खड़ा हो गया। क्योंकि आपने मुझे आप ही और बड़ी अम्मी के सामने बहुत शर्मिंदा किया है। जब आपको मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों आपकी फिक्र करूं? वो सख्ती से जवाब देकर मुड़ने लगी मगर बालाज ने पीछे से इसके गिर्द बाजू बांध दिए थे। ये जुल्म ना करो मुझ पर। तुम जानम पर जानम तुम्हारे बगैर बालाज शाह का गुजारा मुमकिन नहीं। वो इसके कान में झुकता सरगोशी करने लगा। आयत ने बमुश्किल अपनी धड़कनों के शोर करने से रोका था। छोड़े मुझे, मैं आपकी किसी बात पे नहीं आऊंगी। इसने मजामत करने की कोशिश की। अच्छा बताओ क्या चाहती हो तुम? आखिर हार मानते वो इसे अपने बेड पर अपने साथ बिठा गया। वो खुद भी जानता था वो ज्यादा बोल गया, जबकि वो आयत के फायदे की बात करने आए थे। मुझे नहीं कहना कुछ भी, आप मेरी बात नहीं माने। वो अब भी मुसलसल रो रही थी। वादा करता हूँ आज से तुम्हारी मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी कुछ माननी पड़ेंगी। इसने कुछ सोच कर कहा। मुझे घर जाना है। वो नजरें झुकाए बोली, जिसे यकीन हो मना कर देगा। मुझे छोड़कर? बलाज ने किसी खदशे के तहत पूछा, जबकि दिल को पूरा यकीन हो चुका था इसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मुझे बस वहां से रुखसत होने दे। बड़ी अम्मी बहुत मान से मुझे लेने आई थी। वो अटकते हुए बोली। वापस आओगे मेरे पास? बलाज ने संजीदगी से पूछा। इसने इस्तबात में सर हिला दिया। वो उसे खींच कर इसका जबड़ा दबोच गया। अगर वहां जाकर मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो याद रखना, मलार शाह की मोहब्बत देखी है तुमने। इस मोहब्बत को इंतकाम की भीख मत चढ़ाना, पछताओगी। ठीक 6 दिन बाद संडे को मैं बारात लेकर आऊंगा तुम्हें लेने। इसके बाद तुम खानजादा मेंशन का नाम भी नहीं लोगे। सिर्फ तुम और मैं, हम एक दूसरे के लिए होंगे बस। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। वो इसके मुंह पर झुका सर लहजे में बोलकर इसके होठों पर नरमी से छूकर दूर हो गया। आयत को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर जब समझ आई वो अचानक खुशी से इसके गले लग गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और इसे खुश देखकर बलाज ही मुस्कुरा दिया। मैं अम्मा जान को बताकर आती हूँ। वो इसे अलग होकर बाहर जाने लगी। ये होती ये तो हुई तुम्हारी बात, मेरी बात कौन मानेगा? जानम इसने पीछे से आवाज लगाई। इसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदमों को ब्रेक लगी थी। वो परेशानी से बलाज की तरफ देखा। इधर आओ। वो आराम से फैलकर बेड पर लेट गया। इसके इशारे पर आयत घबराते हुए इसकी तरफ बढ़ी।
बलाज की आंखें इसे घबराने पर मजबूर कर रही। इसके पास आने पर बलाज ने इसे खींच कर खुद पर गिराया था। इस अचानक फताहत पर आयत ने आंखें सख्ती से नीच ली थी। वो इसके रूप को आंखों से निहारने लगा। इसकी आंखों की तपिश से आयत को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होने लगा। इसने धीरे से आंखें खोली। वो तो ऐसे ही देख रहा था, इन नजरों का प्याम समझकर वो खुद में सिमट गई। जानम, बलाज के खुमार आलूद लहजे पर इसके होंठ कपकपाए थे। किसमें? बलाज की फरमाइश पर आयत ने झटके से होंकों की तरह इसे देखा। किसमें जानम? बलाज ने दोबारा कहा। क्यों? वो घबरा कर बोली। क्यों करते हैं? इसके अजीब सवाल पर बलाज ने घूर कर देखा। मतलब मैं क्यों करूं? आयत धीरे से मिनमिनाई। तो क्या मैं रीना से मांग लूं? किस? इसकी बात पर बलाज चिढ़कर बोल। आयत ने खूंखार नजरों से इसे देखा। कौन है रीना? मेरी सेक्रेटरी। इसने इत्मीनान से जवाब देकर आयत को देखा, जो सारी शर्म बलाए ताक रख कर खा जाने वाली नजरों से इसे घूर रही थी। मतलब ये सब करने जाते हैं आप ऑफिस में? वो खालिस बीवियों वाले अंदाज में इससे लड़ने पर तैयार हो गए थे। अब तुम इतने नखरे दिखाओगी तो कहीं ना कहीं तो। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, वो झुककर शिद्दत से इसके कंधे पर दांत काट चुकी थी। जंगली बिल्ली! वो झटके से उठकर खड़ा हुआ। इसके उठने पर वो बैठ गई। बलाश कंधे से टी शर्ट हटाकर देखने लगा, जहां इसके दांतों के निशान के साथ हल्के हल्के खून के कतरे वाजे थे। बलाश ने अपने जख्म के बाद इसे देखा, जो खौफजदा नजरों से इसे देख रही थी। जाना कैंसिल, वो सर्द लहजे में कहकर वहां से जाने लगा। आयत भागकर उसके सामने आ गई। प्लीज मना मत करें, मैं सॉरी कर रही हूँ, माफ कर दें प्लीज। वो इस वक्त रोने वाली हो गई थी। बलाज ने इसकी शक्ल देखकर मुस्कुराहट रोकी। आयत को जब कुछ समझ नहीं आया तो अपने पाँव ऊपर करती इसके जख्म पर लात रख गई। इसकी हरकत ने बलाज को बुरी तरह घायल किया। एक सुकून की लहर में सनायत कर दी थी। इसने आयत की कमर में हाथ डालकर इसे खुद में भींच लिया। तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। जल्दी आना, वरना मेरा इरादा बदलने में वक्त नहीं लगेगा। वो इसके माथे पर लब रखता कमरे से निकल गया। इसके निकलते ही इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वो कैसे सबका सामना करेगी? तुम चाहते क्या हो मुझे बता दो, इतने लापरवाह तुम कभी नहीं हुए। सानार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आदम खान ज्यादा गुस्से से इस पर बरस रहा था। भाई, मुझे नहीं पता वो सब कैसे गायब हो गया। आई नो, आपने मुझ पर भरोसा करके रखवाया था, मगर वो मेरे लॉकर में से गायब हो गया। मुझे पता नहीं चला, वो शर्मिंदगी से इसे बता रहा था। वही तुम्हारी बेगुनाही के सबूत थे मेरे पास। अब जानते हो तुम, वो आया से बदला लेगा, हर चीज का। मैं तुमसे पिछले 1 महीने से मांग रहा हूँ, कभी कोई बहाना तो कभी कोई जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? आदम का बस ना चला इसे जिंदा जमीन में गाड़ दे। आया का नाम मत ले मेरे सामने। इसने इस घटिया आदमी के सामने मेरे साथ आने के बजाय इसके साथ को तरजीह दी। सालार संजीदगी से बोला। बकवास मत करो। और अगर इन सब में फंसी है तो इसकी वजह तुम हो। अब मुझे कुछ सोचने दो। तुम जाओ ऑफिस, और कहीं जाने के बजाय मुझे घर में मिलना दो। आदम संजीदगी से कहकर अपने ऑफिस के से निकल गया। पीछे वो भी गुस्से से वहां से निकलकर ऑफिस चला गया। वो अम्मा जान से मिलकर बलाज शाह के साथ खानजादा मेंशन आई थी, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। ना ही बलाज अंदर जाना चाहता था। वापस चलते। इसी दरवाजे की तरफ हसरत से देखता देखकर बलाज ने स्टीयरिंग संभाल ली थी। नहीं, आयत ने इसका हाथ थाम लिया। मैं इल्तिजा करती नजरों से उसे देखा। किसी दिन जान ले लोगे तुम मेरी? बलाज इसको देखता अफसोस से बोला, और गाड़ी दरवाजे की तरफ मोड़ दी। आयत को गाड़ी में बैठे देखकर चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। पोर्च में गाड़ी रोककर इसने दूसरी तरफ से आयत का हाथ थाम कर निकाला, जबकि घबराहट की वजह से इससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट और लेदर की जैकेट पहने वो आयत का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। रात के 9 बजे वहां सालार और शिफा के अलावा सभी बैठे थे। आदम और अर्श कुछ देर पहले ही आए थे। इनको अंदर आता देख सब खड़े हो गए थे। सजदा बेगम इसे देखकर आगे बढ़ी। अपनों पर नजर पड़ते ही वो बलाज से हाथ छुड़ाकर सजदा बेगम की तरफ भागी और उनके गले लगे। बलाज ने जब से अपने खाली हाथ को देखा था, जहां से वो अपना हाथ छुड़ा गई थी। एकदम से चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा हो गया। संजीदगी तो फ्री आदम और अर्श के चेहरे पर भी छाई हुई थी। आदम को खामोश देखकर अर्श वहां से चला गया। आयत बारी बारी सबसे मिलने लगी। जब आदम के पास आई तो बहुत घबराई हुई थी, कहीं वो इसे धुतकार ना दे पहले की तरह। आदम ने बाजू खोलकर इसकी मुश्किल आसान कर दी। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। इसके पास आते ही वो इसकी से रोने लगी। मैं सब जानता हूँ, डोंट वरी। काश वो जान जाती कितनी मुश्किलों से वो ये सब जब्त कर रहा है।
बेटा अंदर आ जाओ। सरसा बेगम ने बालाज को खड़ा देखकर अंदर बुलाया। आयत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो संजीदगी से इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर सर्द मेहंदी देखकर इसे एहसास हो गया था। वो फौरन अपनी नजरें झुका गई। चलो जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।